Good morning friends, I am Snehal sir. Welcome to my physics class. दोस्तों, today we will perform the experiment 2. The aim of the experiment is to determine the resistance of a given wire using a meter bridge and hence determine the resistivity of the material of the given wire. So friends, आप लोग देख सकते हो गुजरात बोर्ड की ये जर्नल है. इन दिस जर्नल ये इंडेक्स दिया हुआ है. इन इंडेक्स फर्स्ट एम ऑफ द इंडेक्स दिया हुआ है. देन पेज नंबर, कौन से पेज के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट है वो पेज नंबर यू हैव टू एक्सप्लेन एंड देन यू हैव टू राइट द डेट ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट. डोंट साइन दिस. ये साइन आपके सब्जेक्ट टीचर, लैब टीचर की है. ठीक है, तो यहाँ आपको साइन नहीं करना है. अब हम चलते हैं experiment 2. So you have to write down the date. Aim is already given and you have to write down the apertures which are using in this experiment and a brief detail of procedure. Then you have to draw the circuit diagram and observation, and then observation tables is given the calculation, the required calculation and final the results. So let's perform experiment. दोस्तों, सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सर्किट डायग्राम में we use बैटरी. सो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. The negative terminal is connect with the key. If your battery has on off switch, then don't connect this key, and another terminal of the key is connected to the rheostat. Positive terminal of the battery is connected to the one terminal of meter bridge. अब सर्किट को याद रखने के लिए हम सबसे पहले मीटर ब्रिज ड्रॉ कर लेंगे. मीटर ब्रिज में आपको ध्यान रखना है, मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट, उसमें एल शेप का एक प्लेट रहता है. देन एक अनदर प्लेट्स इन द मिडल वन एंड देन अनदर एल शेप plate, metal plate on the another end. Up from this two end, 1 meter distance is there and 1 meter wire is connected. इसके साथ स्केल भी रहता है. Now इसके ऊपर एक टर्मिनल इधर होता है और दूसरा टर्मिनल यहाँ. ये जो मिडल वाली प्लेट है उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं. 3 terminals are there. So this positive terminal is connect with the terminal of the wire which is given by name A, and the slider of the rheostat is connect with the another terminal of the meter bridge which is given by name C. अब हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको हम लेफ़्ट साइड के अंदर कनेक्ट करेंगे. तो यहाँ दिस इज़ द अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ दिस. इसको हम नाम देंगे, विल गिव द नेम एज एस, अननोन रेजिस्टेंस. एंड राइट साइड का जो गैप है उसके अंदर भी कनेक्ट द रेजिस्टेंस बॉक्स. एंड जो मिडल वाला टर्मिनल है उसमें से एक वायर जाएगा, वो कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विथ द जॉकी एंड the null point which we find on the during the experiment is given by D. So this galvanometer वाला पॉइंट रहेगा B. So A, B, C and D. The distance AD
is considered as length of the wire L1 and distance DC is considered as length of the wire L2, that is 100 minus L1, and D is the null point. So ये simple, this is circuit है. ये circuit draw करने के बाद we have to note down the some observation which is given that, and the observation are the length of the wire of the unknown resistance, that is we have taken here meter bridge, so 100 centimeter is the length. Measurement of diameter of the wire of unknown resistance, that we have to measure with the help of screw gauge. So we'll performing that experiment. Then we come to the observation table. So before note down the observation table, let's connect this circuit. So let's learn about the connecting the circuit. दोस्तों सबसे पहले ये हमारा मीटर ब्रिज है. आप देख लो मीटर ब्रिज को. लेफ़्ट साइड का एल प्लेट, मिडल वन प्लेट एंड राइट साइड का एल प्लेट. ये स्केल के ऊपर ये वायर लगा हुआ है. देखिए ये वायर, दिस लेंथ ऑफ द वायर इज़ 100 सेंटीमीटर. अब इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले ज्वाइन करने से पहले हम अपने जिस अरेंजमेंट में करना है उस तरह से रख देंगे. जैसे ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, रियोस्टेट, एंड रियोस्टेट का जो स्लाइडर वाला टर्मिनल है वो जाएगा एल टर्मिनल ऑफ द मीटर ब्रिज. फिर लेफ़्ट साइड का जो गैप है उसके अंदर से दो वायर निकलेंगे, उसमें कनेक्ट होगा हमारा अननोन रेजिस्टेंस. राइट साइड के गैप के अंदर हमारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट होगा, एंड जो मिडल टर्मिनल है उससे गैल्वेनोमीटर में जाएगा. ये देख लीजिए गैल्वेनोमीटर, एंड गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो कनेक्ट होगा हमारे चौकी से. तो आइए सबसे पहले जल्दी से हम कनेक्शन कर लेते हैं. चलिए दोस्तों, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, उसमें से जो वायर जाएगा वो मीटर ब्रिज के एक एंड में जाएगा. फिर ये दूसरा टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होगा. तो ये दोनों के बीच में है, तो एक टर्मिनल जो है वो यहाँ कनेक्ट होगा. ठीक है. देन अब हम करते हैं मिडल वन कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में से, एंड गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में से एक वायर निकलेगा जो जाएगा जॉकी के अंदर. इसको ये सब कनेक्शन टाइट करना है, बट ओवर टाइट नहीं करना है. देखो ये वायर है, उसका लेंथ इतना रखना है कि आप मीटर ब्रिज के दोनों एंड तक आप ये जॉकी को मूव कर सकें. तो उतना लेंथ हमें रखना है. ये जॉकी कनेक्ट हो गई. अब जो राइट साइड का गैप है उसके अंदर हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे. ये रेजिस्टेंस बॉक्स ये कनेक्शन यहाँ हो गया, और दूसरा कनेक्शन तो ये दो कनेक्शन, ये कनेक्शन हो गया. अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव टर्मिनल जाता है रियोस्टेट के अंदर, तो वहाँ से ये हो गया हमारा रियोस्टेट. रियोस्टेट का स्लाइडर जाएगा. ये रियोस्टेट का स्लाइडर है, तो स्लाइडर में से ए कनेक्शन जाएगा आपका
सो दोस्तों ये हमारा सर्किट कनेक्शन हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए अब सर्किट ज्वाइन करने के बाद हम स्विच ऑन करते हैं, बैटरी का स्विच ऑन करेंगे। एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो जब हम वन एंड ऑफ द मीटर ब्रिज को टच करवाते हैं तब एक साइड में आता है, देख सकते हो, लेफ़्ट साइड में आया। अब अगर हम राइट साइड को टच करवाते हैं तो ये आपको राइट साइड में आया, ठीक है। तो मतलब क्या कि हम दोनों साइड में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि नल पॉइंट विल बी ऑन दिस वायर। अगर कोई एक ही साइड में डिफ्लेक्शन आता है तो आपको इधर रियोस्टेट और ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके दोनों साइड में डिफ्लेक्शन लाना है। सो सबसे पहले आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले आपका डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में दोनों साइड में आना चाहिए। चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से 5 ओम निकालते हैं एंड नल पॉइंट फाइंड करते हैं कहाँ हमें नल पॉइंट मिलता है। तो देख लेते हैं, हमें नल पॉइंट मिल रहा है करीबन 27। तो हमें उतना रेजिस्टेंस निकालना है कि हमारा नल पॉइंट 40 to 60 के बीच में रहे। तो ये कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है, तो हम कम कर देते हैं एंड वी टेक आउट की 4 रेजिस्टेंस और देखते हैं कि हमें नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है। यहाँ भी हमें नल पॉइंट 30 आप देख सकते हो 35 के ऊपर मिल रहा है। तो 35 हम लिख लेते हैं 35। देन वी टेक आउट 3 ओम्स। 3 ओम्स के लिए हमें नल पॉइंट मिलेगा 39। तो वो लिख लेते हैं 39। देन कीप 2 ओम्स। 2 ओम्स के लिए हमें मिल रहा है 48। तो वो लिख लेते हैं 48। एंड हम 1 ओम निकालते हैं। 1 ओम के लिए हमें मिल रहा है 54। तो वो हम लिखते हैं 54 एंड वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड दिस अननोन रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स लेफ़्ट साइड गैप में आएगा एंड अननोन रेजिस्टेंस राइट साइड गैप में आएगा। तो पहले हम इंटरचेंज कर लेते हैं एंड देन कम टू परफॉर्म अगेन प्रैक्टिकल। चलिए अब हमने इंटरचेंज कर लिया है, रेजिस्टेंस बॉक्स लेफ़्ट गैप में एंड अननोन रेजिस्टेंस राइट गैप में है। एंड हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से 4 ओम्स निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं हमें लेंथ L1 कितना मिल रहा है। तो हम जा रहे हैं, तो लेंथ L1 मुझे मिल रहा है 60। तो नोट डाउन कर लेते हैं। 4 ओम्स के लिए लेंथ L1 60 सेंटीमीटर। देन 4 के बाद 3 ओम्स के लिए हमें लेंथ कितना मिल रहा है। 3 ओम्स के लिए हमें मिल रहा है 53। 2 ओम्स के लिए हमें लेंथ मिल रहा है 44 एंड 1 ओम्स के लिए हमें लेंथ मिल रहा है
30। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया। अब हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका डायमीटर फाइंड करते हैं। उसके लिए वी यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। सबसे पहले उसकी लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए एंड एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सी उसका जो दिस एंड है उसको हम रोटेट करेंगे लाइक दिस एंड वी सी दैट 3 क्लिक्स। सी 3 क्लिक के बाद हम उसका रीडिंग देखेंगे। ये 0 है, दिस 0 is the 0 of the circular scale is exactly coincide with the 0 of the main scale। आप देख सकते हो zero of the circular scale is exactly coincide with the 0 of main scale। this one is a main scale, this one is the circular scale। ठीक है, सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीज़न होते हैं एंड मेन स्केल के अंदर 1 डिवीज़न द वैल्यू इज़ 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ जब दोनों एंड एक दूसरे से टच होते हैं हमें 0 0 एग्जैक्ट कोइंसाइड होता है, मतलब यहाँ एरर 0 है। तो 0 एरर तो स्क्रू गेज का हम लिखेंगे 0 मिलीमीटर एंड 0.0 सेंटीमीटर। तो करेक्शन भी हमें 0 0 आएगा। ठीक है, अब हम मेज़रमेंट किस तरह से लेना है वो देख लेते हैं। तो आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है, अगर इसका वायर थोड़ा लूज़ है तो आप इसके अंदर अटैच करके मेज़रमेंट ले सकते हैं, या एट द एंड ऑफ पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। देखो ये वायर आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा एक्सटेंड है, उसमें मैं ये माइक्रोमीटर को अटैच करूँगा और you can see that what is the, ठीक है, ये देख सकते हो आप। अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये क्लिक करवाना है, ये नॉब घुमा के 3 क्लिक 1 3 एंड वी हैव टू सी। अब you can able to see that the 0 of the main scale is exactly coincide with the 24th division of the circular scale। so list count of the LC is मिलीमीटर में देखें तो जैसे मैंने बताया था आपका लिस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर, मतलब 0.001 मिलीमीटर एंड उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमारा LC हो गया। तो किस तरह से हम मेज़रमेंट करेंगे, तो मेन स्केल रीडिंग जो हमारा है वो मेन स्केल रीडिंग है 0 हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो मेन स्केल रीडिंग हमें सिर्फ 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कोई नहीं दिखा, 0 का डिवीजन दिखा रहा है तो वो मैं 0 लिखूँगा, 0 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ कोइंसाइड circular scale, that is 24 division of the circular scale which you are able to see, and diameter is तो आपका P plus N into LC। तो N हमारा है 0.001 into 24 मतलब 0.024 प्लस P 00, सो हमारा डायमीटर आएगा 0.024 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा डायमीटर हो गया। अगर ये वायर सभी मतलब आप इसका रीडिंग लेंगे तो ये इतना ही आएगा।
तो एवरेज हम ले लेते हैं मीन डायमीटर 0.024 एंड उसका रेडियस निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0.012 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। अब हम आगे का जो बाकी का हमने ऑब्जर्वेशन ले लिया है वो कैलकुलेट करते हैं। 100 माइनस फर्स्ट 4 ओम के लिए हमें L1 लेंथ मिला है 35, तो 100 माइनस L1 आप लिख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये सब आपको करना है। एक बार आपको ये मिल गया तो यहाँ L2 मिलेगा। फिर S1 गैप में जो रेजिस्टेंस आएगा इंडिविजुअल S1 वो R का मतलब ये 4 इंटू L1 अपॉन L2 जो हमारा फॉर्मूला है उसमें सब्सटीट्यूट करके आप R S1 S2 S3 S4 निकालेंगे। सिमिलरली S गैप जो अननोन रेजिस्टेंस राइट साइड में है उसके लिए आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा S1, ये मिलेगा S2। तो 4 रेजिस्टेंस के लिए S1 S2 उसका मीन आपको S मिलेगा यहाँ। फिर S2 के लिए मतलब 3 ओम्स के लिए आपको मीन मिलेगा। तो सबका हमें मीन ले लेना है एंड देन वी हैव टू राइट रो ओम मीटर डेंसिटी हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पीछे डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है। रो इज़ इक्वल टू S पाई R स्क्वायर अपॉन L। L हमारा 100 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। R हमें मिला है वो 0.0, उसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। पाई का वैल्यू एंड जो S है वो आपको यहाँ जो मीन ऑब्जर्वेशन मिला वो S को करके आपको फाइंड करना है। ठीक है, और इंडिविजुअल आपको एरर फाइंड करनी है। एरर के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है बैक साइड में। सो ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए हमें ये कैलकुलेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए एंड देखिए। इस तरह से आपको ये जर्नल कंप्लीट करनी है। तो फाइनली आपको डेल्टा रो भी फाइंड करना है। तो डेल्टा रो का जो मतलब रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी में जो एरर आती है वो फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। आप कैलकुलेशन कर लीजिए एंड नोट डाउन इन योर जर्नल।